غار کے دوسرے حصے میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اکبر کے سوا سارے لوگ سو رہے تھے۔ اکبر سب مشین گن سنبھالے غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سب لوگ رات بھر کے جاگے ہوئے اور پہاڑوں میں طویل سفر کر کے تھکے ہوئے تھے، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے نہ تو تھکن کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی نیند آ رہی تھی۔ تم بھی رات کے جاگے ہوئے ہو اور تھکے ہوئے ہو، سو جاؤ، میں یہاں ڈیوٹی دیتا ہوں، میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ میں نے اکبر سے سب مشین گن لے لی اور اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اکبر اٹھ کر چند گز دور عبدالغنی لون کے قریب فرش پر لیٹ گیا اور کچھ دیر بعد اس کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ میں تمہارے لیے قہوہ بنا لاتی ہوں، تمہیں اس وقت یقیناً طلب ہو رہی ہوگی۔ مریم نے کہا، ہاں طلب تو ہو رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ مریم غار کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئی۔ میں غار سے باہر دیکھنے لگا۔ یہاں سامنے قد آمد خود روا جھاڑیاں اور چٹانیں نمایاں تھی، بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے زیادہ دور تک نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ 15-20 منٹ بعد مریم قہوہ بنا کر لے آئی۔ اس نے ایک مگ میرے ہاتھ میں تھمایا اور دوسرا خود لے کر سامنے بیٹھ گئی۔ قہوے کی چسکیوں کے ساتھ ہم سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ انہی باتوں میں مریم کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی میرے سامنے آیا۔ وہ لاہور کے ایک زمیندار گھرانے کی فرد تھی۔ ان کی زمینیں لاہور کے گرد و نواح میں تھی، جبکہ لاہور کے سب سے مہنگے علاقے ماڈل ٹاؤن میں ان کی ایک شاندار کوٹھی بھی تھی۔ وہ میڈیکل کی تعلیم سے جیسے ہی فارغ ہوئی تو والدین کو اس کی شادی کی فکر ہوئی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ فی الحال اس کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کی منگنی اگرچہ بچپن میں ہی اس کے کزن سے ہو چکی تھی اور وہ بھی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ مریم نے اپنے منگیتر سے بھی کہا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کا خیال دل سے نکال دیا جائے۔ مریم کے منگیتر نے بڑی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے اس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور مریم کو یہ پیشکش بھی کی کہ وہ شادمان ٹاؤن میں اپنے 10 کنال پلاٹ پر اسے ہسپتال کی تعمیر کر کے دینے کو تیار ہے اور وہ بے لوث ہو کر ہر طریقے سے اس کی معاونت بھی کرتا رہے گا۔ لیکن مریم نے اس کی اس پیشکش کو بھی ٹال دیا کہ فی الحال اسے تجربے کی ضرورت ہے۔ وہ سرکاری ملازمت کے دوران پونچھ کے ہسپتال میں آ گئی اور مجاہدین کی حالت دیکھ کر اس نے زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا، جو پونچھ سے کشمیر آ گئی اور پچھلے 2 سال سے وہ مجاہدین کی خدمت کر رہی تھی۔ ہم دیر تک غار کے دہانے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور پھر مریم اٹھ کر دوسرے حصے میں چلی گئی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا باہر تک رہا تھا۔ مریم نے روٹیاں پکا لی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت سب کو جگا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ پر تھکن کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اب مجھ پر نیند بھی حملہ آور ہو رہی تھی۔ زبیر نامی نوجوان نے میری جگہ ڈیوٹی سنبھال لی اور میں فرش پر لیٹتے ہی سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو غار کے باہر بھی شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ غار کے دوسرے حصے میں لالٹین جل رہی تھی جس کی مدھم سی روشنی اس طرف پہنچ رہی تھی۔ چند لمحے تک تو میرے دماغ پر نیند کا خمار طاری رہا اور جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں جان کر حیران رہ گیا کہ میرے قریب حسن بیٹھا ہوا تھا۔ کمانڈر محب اللہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے نیم دراز تھا اور مریم اس کے قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ان کے علاوہ غار میں اور کوئی نہیں تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ تمام مجاہدین شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی اپنے مختلف ٹھکانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ حسن کے بڑے دلچسپ انکشافات ہوئے تھے۔ وہ ہماری کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہی اطراف کے پہاڑوں میں چھپ گیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق شہر کی شمالی چھاونی سے کئی فوجی ٹرک وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن وہ کیمپ سے دور ہی رک گئے تھے۔ فوجی دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کی پہاڑیوں میں پھیل گئے۔ وہ کیمپ بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ حسن بتا رہا تھا، میں 5 بجے تک اپنی کمینگاہ میں چھپا رہا۔ اس وقت تک کیمپ میں اکا دکا دھماکے ہو رہے تھے اور دھوئیں کے بادل امڑ رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کیمپ میں درجنوں فوجی جہنم رسید ہو چکے ہوں گے اور کچھ نہیں بچا ہوگا۔ کیمپ کے نقصان کے بارے میں صحیح اطلاعات نہیں ملی تھی۔ بہرحال مجھے خوشی تھی کہ ہم نے بھارتی فوج کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ اگلے روز ایک اور مجاہد غار میں پہنچ گیا۔ اس کی اطلاع کے مطابق بھارتی فوجی مجاہدین کی تلاش میں آس پاس کی بستیوں کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ ان بستیوں کے کئی گھروں کو جلا کر راکھ کر ڈالا، کئی بے گناہ بوڑھوں کو اذیت دے کر ہلاک کر دیا، کئی عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اس بھارتی فوجی کیمپ کی تباہی کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف اطلاعات مل رہی تھی۔ ایک اطلاع یہ تھی کہ وہ کیمپ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اور 57 فوجی جہنم واصل ہو چکے تھے، جن میں چند اعلیٰ افسران بھی شامل تھے۔ کیمپ کی تباہی اور اپنے آدمیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے گناہوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ شبے میں پکڑے جانے والوں کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اسی شام ایک خوفناک اطلاع ملی۔ فوجیوں نے گلمرگ کے ایک مکان سے 2 نوجوانوں کو پکڑ لیا تھا۔ ان میں ایک بیمار تھا، اس میں چلنے کی سکت نہیں تھی، وہ کئی روز سے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ دوسرا اس کا دوست تھا جو اس کی مزاج پرستی کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کی عمر 16 سال کے لگ بھگ رہی تھی۔ بھارتی فوجی ان دونوں کو پکڑ کر شہر کے مرکزی چوراہے پر قائم کیمپ میں لے گئے۔ قریباً 2 گھنٹوں تک مجاہدین کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے ان پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ پھر بیمار نوجوان کے جسم پر بم باندھ کر اسے چوک میں چھوڑ دیا گیا اور جب بم پھٹا تو اس نوجوان کے چیتھڑے اڑ گئے، جبکہ دوسرے نوجوان کو مزید تفتیش کے لیے چھاونی میں بھیج دیا گیا۔
और फिर उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल सका। बीमार नौजवान को बम से उड़ाए जाने की खबर आनन फानन पूरी वादी में फैल गई। निहत्थे बेबस और मजबूर कश्मीरी एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में उनके पुरअमन एहतजाजी जुलूसों पर भारतीय फौजियों ने गोलियां बरसाई और चंद और लाशें गिरा दी। बेगुनाह कश्मीरियों ने मजीद एहतजाज के लिए पूरी वादी में हड़ताल की काल दे दी। वादी कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ हड़ताल रोज का मामूल बन चुकी थी, लेकिन भारतीय हुक्मरानों पर उन पुरअमन एहतजाजात का कोई असर नहीं होता था। इसके बरक्स नुकसान कश्मीरी अवाम का ही होता था। तमाम कारोबार ठप हो रहे थे। शहरों में रहने वाले भी फाका कशी कर रहे थे। एक हफ्ता बाद एक और सनसनीखेज खबर मिली। भारतीय फौज के एक दस्ते ने बिसालपुर पर हल्ला बोल दिया था। उन्हें इत्तला मिली थी कि कैंप पर मुजाहिदीन के हमले से एक रोज पहले 2 मुजाहिदीन इस बस्ती में आए थे और पूरा दिन यहाँ गुजार कर गए थे। ये इत्तला मेरे और मकबूल के बारे में थी। हमारे बारे में पूछगछ के लिए बस्ती वालों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब बस्ती वालों ने एहतजाज किया तो भारतीय वैश्यों ने कई घरों को नजर आतिश कर दिया और अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय फौजियों को इत्तला ये मिली थी कि मुजाहिदीन ने मासी आयशा के घर में पनाह ली थी। मासी आयशा को बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसे तशद्दुद और हवस का निशाना बनाने के बाद उसकी छातियां काट दी गई थी और संगीनों से वार करके उसका पेट चाक कर दिया गया था और उसके घर को जलाकर राख कर दिया गया था। मैं उस बस्ती के बारे में कुछ और सुनना नहीं चाहता था और फिर ये सनसनीखेज खबर सुनकर मेरी रूह कांप उठी कि बिसालपुर की 4 जवान लड़कियां लापता थी और उनमें अंगूरी भी थी। जब मैंने अंगूरी को देखा था तो मेरे सीने में एक हलचल सी मच उठी थी। उससे हालांकि मेरी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी, लेकिन मैं उसके लिए अजीब से जज्बात महसूस करने लगा था। उसके बारे में सोचता तो मेरे पूरे बदन में गुदगुदी सी होने लगती और अब इस खबर ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मेरी रूह तक कांप उठी थी। खबर लाने वाले की इत्तला के मुताबिक 2-3 लड़कियां फौजियों के कब्जे में थी और 2-3 लड़कियों को शाम के अंधेरे में बस्ती से भागते हुए देखा गया था। हो सकता है अंगूरी भी उन लड़कियों में शामिल हो जो भारतीय फौजियों से बचकर बस्ती से भाग गई थी। एक मुहिम सी उम्मीद थी और मैं इस उम्मीद के सहारे उसे तलाश करना चाहता था। और जब मैंने डॉक्टर मरियम से बात की तो वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। ठीक है, वो गहरा सांस लेते हुए बोली, कमांडर महिबुल्लाह से बात कर लो, वो तुम्हें नहीं रोकेंगे। कमांडर महिबुल्लाह ने मुझे जाने की इजाजत दे दी और हसन को भी मेरे साथ कर दिया। हम उसी शाम उनसे रुखसत होकर गार से रवाना हो गए। हम रात भर पहाड़ों में छुप कर सफर करते रहे। सुबह सवेरे बिसालपुर के इलाके में पहुंच गए, लेकिन बस्ती का रुख करने के बजाय जंगल में छुपे रहे। पूरा दिन हमने जंगल में गुजार दिया और शाम का अंधेरा फैलने के बाद जंगल से निकलकर बस्ती में आ गए। कई घरों को जलाकर राख कर दिया गया था। ये भारतीय फौजी चंगेज और हलाकू से ज्यादा संगदिल और जालिम थे। जिस बस्ती में निकल जाते उसे तबाह और बर्बाद करके रख देते। इस रोज भारतीय फौजी 2-3 लड़कियों को उठा कर ले गए थे, लेकिन पूछने पर गाँव के एक बूढ़े ने बताया अंगूरी 2-3 लड़कियों के साथ बस्ती से भाग गई थी। कल ये खबर सुनने में आई थी कि उसे पतन की तरफ किसी जगह पर देखा गया है। ये तस्दीक नहीं हो सकी कि वो अंगूरी थी या कोई और। मेरे दिल में उम्मीद की किरण कुछ और रोशन हो गई। मैं और हसन उसी रात पतन की तरफ रवाना हो गए। बारामूला श्रीनगर शाहराह पर वाक़या पतन नाम का वो कस्बा बिसालपुर से तकरीबन 25 मील के फासले पर था। अगर हम बारामूला की तरफ से होकर जाते तो ये फासला कम से कम 20 मील बढ़ जाता। हमने वो रास्ता इख्तियार किया जिस पर भारतीय फौजियों के तसादुम का ज्यादा खतरा भी ना हो। हमें बस्ती से खच्चर मिल गए थे। हम रातों रात दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर सफर करते हुए सुबह 4 बजे के करीब पतन बारामूला हाईवे के करीब पहुँच गए। सड़क हमारे सामने थी। हम पहाड़ियों से निकलकर सड़क पर आना चाहते थे कि गर गर की आवाज सुनकर रुक गए। वो भारी ट्रकों की आवाज थी। हम खच्चरों से उतरकर कुछ आगे निकल गए और एक चट्टान की आड़ से सड़क की तरफ देखने लगे। उस जगह बड़े बड़े चट्टान नुमा पत्थर थे और दरख्तों की भी बहुतायत थी, इसलिए सड़क की तरफ से हमें देख लिए जाने का अंदेशा नहीं था। वो 2 फौजी ट्रक थे जिन पर सामने और दाएं बाएं मशीन गनें नस्ब थीं और फौजी मुस्तैद खड़े थे। सड़क हमसे करीबन 15 फुट नीचे थी। मैं और हसन पत्थरों की आड़ में खड़े इन्हें अपने सामने से गुजरते हुए देख रहे थे। मेरा ख्याल था कि ट्रक निकल जाएंगे तो हम सड़क पार करके दूसरी तरफ की पहाड़ियों में चले जाएंगे। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि पहाड़ियां तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। मैं उछल पड़ा। हमसे कुछ आगे शायद कुछ मुजाहिदीन घात लगाए बैठे थे और उन्होंने ट्रक पर फायर खोल दिया था। मैंने हसन की तरफ देखा और फिर हम भी ट्रकों पर फायरिंग करने लगे। अगले ट्रक के 2 फौजी दूसरे मुजाहिदीन की फायरिंग से जानम हासिल हो चुके थे। उनकी जगह दूसरे फौजियों ने संभाल ली थी और मशीन गनों का फायर खोल दिया। निस्फ दर्जन फौजी ट्रकों से कूद कर सड़क के किनारे पत्थरों के पीछे पोजीशन संभाल चुके थे और सब मशीन गनों से फायरिंग कर रहे थे। मैं नहीं जानता था कि दूसरे मुजाहिदीन कौन थे, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद दिए बगैर ना रह सका। वो सामने से मशीन गनों की शदीद फायरिंग के बावजूद अपनी जगह पर डटे हुए थे और फिर कान फाड़ देने वाला एक धमाका हुआ। मुजाहिदीन में से किसी ने अगले ट्रक पर दस्ती बम फेंक
फेंका था, ट्रक के परखचे उड़ गए थे। सड़क के किनारे पत्थरों में पोजीशन लिए हुए भारतीय फौजियों की फायरिंग में शिद्दत आ गई थी। हम अपनी जगह बदल कर फायर कर रहे थे। सामने से फायरिंग में भी शिद्दत आ गई थी। मैं और हसन दौड़ते हुए वहाँ से दूर निकल गए। उस तरफ से भी दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर दो आदमी दौड़ते हुए सामने आ गए। उन्होंने हमें देखते ही राइफलें सीधी कर ली थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उन्होंने राइफलों का रुख बदल दिया। मैं दौड़ता हुआ जैसे ही एक पत्थर की दूसरी तरफ मुड़ा, उस तरफ से आने वाला एक मुजाहिद मुझसे टकरा गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो चीख सुनकर मैं भी चौंक गया था। चेहरे पर नकाब था। अक्सर मुजाहिदीन भारतीय फौजियों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयां करते हुए चेहरों पर नकाब बांध लेते थे ताकि इन्हें शनाख्त न किया जा सके। मुझसे टकराकर वो मुजाहिद लड़खड़ा गया। मैंने उसे संभालने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। इत्तफाक से मेरा हाथ उसके चेहरे पर टकराया और नकाब उसके चेहरे से हट गया और इस स्याहपोश मुजाहिद का चेहरा देखकर मैं उछल पड़ा। वो अंगूरी थी। अंगूरी तुम? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। मुझे याद आ गया जब मैंने एक दिन उनके घर में कयाम किया था तो मेरी तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर सुर्खी छा जाती थी और हया से नजरें झुक जाती थी, लेकिन इस वक्त मुझसे टकराने के बाद वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। हम दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला था, लेकिन ना तो उसके चेहरे पर हया की सुर्खी फैली थी और ना ही उसकी नजरें झुकी थी। इसके बरक्स उसकी मोटी मोटी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने उसके हाथों की मखमली उंगलियों को सुई की मदद से कपड़े पर रंगीन धागों से नाजुक सी बेल बूटे बनाते हुए देखा था, लेकिन इस वक्त उसके हाथों में सब मशीन गन थी जो सिर्फ अंगारे उगलना जानती थी। तुम्हारे हाथों में राइफल देखकर मुझे हैरानी हो रही है, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। ओह, अंगूरी के मुंह से बेख्तियार निकला। औरत खेतों में अनाज उगाने के लिए हल चलाकर जमीन का सीना चीर सकती है, सड़कें बनाने के लिए पत्थर कूट सकती है, मजदूरी कर सकती है, सर का बोझ उठा सकती है, तो हाथों में राइफल क्यों नहीं उठा सकती? और मैं तो कश्मीर की बेटी हूँ। अब वक्त आ गया कि कश्मीर की हर औरत अपनी इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ और वादी में तकद्दुस के लिए हाथों में राइफल उठा ले, लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट में वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी। भारतीय फौजी फायरिंग करते हुए पेशकदमी कर रहे थे। अंगूरी भागो इस तरफ, अंगूरी के एक साथी ने चीखते हुए कहा। यह भी आसमानी आवाज थी जिसने मुझे बुरी तरह चौंका दिया था। मैंने पहली बार इसकी तरफ गौर से देखा। ये वही मुजाहिद था जिसने पहले मुझ पर राइफल तानी थी। गोल मटोल सा चेहरा, चमकती हुई मोटी मोटी आंखें और ढीला ढाला कुर्ता। उसके सर पर भी काला रुमाल बंधा हुआ था और वो भी लड़की थी। मैंने अंगूरी की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये बातों का वक्त नहीं है, बाद में तफसील से बातें होंगी। तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? अंगूरी ने कहा। सिर्फ एक, मैंने जवाब दिया और हसन की तरफ इशारा किया जो चंद गज दूर एक बड़े पत्थर की आड़ से भारतीय फौजियों की फायरिंग का जवाब दे रहा था। ओह, अंगूरी के मुंह से एक बार फिर निकला। उन वहशियों का एक ट्रक हमने तबाह कर दिया है। जिंदा बच जाने वाले फौजी अब सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। इन पहाड़ों में हमारे पीछे नहीं आएंगे। इस तरफ निकल चलो। और नूरी तुम? उसने अपनी साथी की तरफ देखा। अब्दुल्ला को लेकर उस तरफ से निकल जाओ, हम लोग चश्मे पर मिलेंगे। वो लड़की नूरी फौरन ही अपने तीसरे साथी की तरफ दौड़ गई। मुझे इत्मीनान हो गया कि उनके साथ कम से कम एक मर्द तो था। मैंने हसन को इशारा किया और अंगूरी के साथ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। हसन भी रुक रुक कर भारतीय फौजियों की फायरिंग का जवाब देता हुआ हमारे पीछे आ रहा था। मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हो रही थी कि भारतीय फौजियों के ट्रकों पर हमला करने के लिए मुजाहिदीन की इस पार्टी में सिर्फ 3 अफराद थे, 2 औरतें और एक मर्द, और उनकी ये कार्रवाई बड़ी कामयाब रही थी। उन्होंने एक ट्रक को तबाह कर दिया था और मेरे अंदाजे के मुताबिक उस ट्रक के साथ कम से कम 8 फौजियों के भी परखचे उड़ गए थे। उस तरफ से भी वक्फे वक्फे से फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अंगूरी को बहुत नाजुक अंदाम समझता था, लेकिन वो जिस तरह ऊंचे नीचे पत्थरों पर फलांगती हुई बुलंदी की तरफ दौड़ रही थी, इस पर मुझे शदीद हैरत हो रही थी। बाज़ औकात तो मुझसे भी आगे निकल जाती। ये पहाड़ियाँ सब्जे से ढकी हुई थी, मखमली घास और झाड़ियाँ भी थी और ऊंचे दरख्त भी थे। हमारे सामने एक बड़ी अमूदी चट्टान थी। उस तरफ दौड़ते हुए अंगूरी का पैर मुड़ गया और वो कराते हुए जमीन पर गिरी। अंगूरी का इस तरह गिरना उसकी जिंदगी का जामिन बन गया था, क्योंकि ठीक उसी लम्हे लातादार तड़तड़ाती हुई गोलियां उसके सर के ऊपर से गुजरती हुई सामने वाली चट्टान में लगी। मैंने भी एक तरफ छलांग लगा दी और जमीन पर गिरते ही पीछे मुड़कर देखा। 2 भारतीय फौजी ऊपर आ रहे थे और सब मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अंगूरी उनकी गोलियों की जद में आते आते रह गई थी। मैंने एक पत्थर की आड़ लेकर राइफल का ट्रिगर दबा दिया। राइफल ठक करके रह गई। मैगजीन खाली हो चुका था। मैंने खाली मैगजीन निकाल कर फेंक दिया और कमर पर बंधे हुए पटके में अड़सा हुआ दूसरा मैगजीन निकाल कर
फिट करने लगा। गन में मैगजीन फिट करते हुए मैंने अंगूरी की तरफ देखा। वो बड़ी फुर्ती से लौट लगाकर एक पत्थर की आड़ में चली गई थी और फिर दूसरे ही लम्हे उसकी राइफल को शोले उगलते हुए देखा। एक फौजी चिंगाड़ता हुआ ढेर हो गया। दूसरे ने अपने साथी का असर देखकर एक तरफ छलांग लगा दी, लेकिन वो भी अपने आप को ना बचा सका। हसन की राइफल की गोलियों ने उसे छन्नी कर दिया था और मुझे राइफल इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिल सका। हसन दौड़ता हुआ हमारे करीब आ गया। मैं लपक कर अंगूरी के करीब पहुंच गया और एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़कर एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। राइफल उसके दाएं हाथ में थी। सड़क की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। भारतीय फौजी हवा में हिलती हुई झाड़ियों पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। हम तीनों उस अमूदी चट्टान के साथ साथ दौड़ते हुए दूसरी तरफ निकल गए और रुके बगैर मुसलसल दौड़ते रहे। हमारा रुख बुलंदी की तरफ था। अंगूरी जिस तरह दौड़ने में हमारा साथ दे रही थी वो काबिले तारीफ था। फायरिंग की आवाज अब बहुत पीछे रह गई थी और फिर फायरिंग रुक गई। भारतीय फौजियों को शायद ये एहसास हो चुका था कि वो हवा में गोलियां चला रहे हैं। कुछ और फासला दौड़ते हुए तय करने के बाद हम गुंजान दरख्तों में रुक गए। यहाँ बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए थे। अंगूरी एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गई। उसने सब मशीन गन जमीन पर डाल दी और गहरे गहरे सांस लेते हुए दोहरी हो गई। बुलंदी की तरफ मुसलसल दौड़ते हुए उसका सांस बुरी तरह फूल गया था। मेरी और हसन की कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। मैंने भी एक पत्थर से टेक लगाकर टांगे फैला ली, जबकि हसन घास पर लेट गया। मैंने आंखें बंद कर रखी थी और गहरे गहरे सांस ले रहा था। पिछले कई रोज भाग दौड़ में ही गुजरे थे। मैंने दौड़ते हुए मीलों का फासला भी तय कर लिया था, लेकिन ऐसी कैफियत पहले कभी नहीं हुई थी। इसकी वजह शायद ये थी कि इस वक्त हम मुसलसल बुलंदी की तरफ दौड़ते रहे थे। अगर रास्ता हमवार या नशेब की तरफ होता तो शायद मेरी हालत ये ना होती। 2-3 मिनट बाद मैंने आंखें खोलकर अंगूरी की तरफ देखा। उसने भी दोनों टांगे आगे को फैला रखी थी। दोनों बाहें भी पहलू में फैली हुई थी। सर किसी कदर पीछे को झुका हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। ढीले ढाले कुर्ते में तनाव सा था, जिसके नीचे उसका सीना धुंधनी की तरह फूल और पिचक रहा था। अंगूरी ने आंखें खोल दी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो टांगे समेट कर सीधी होकर बैठ गई। हसन भी उठकर बैठ गया था। मैं तो तुम्हें बहुत नाजुक सी लड़की समझता था, लेकिन तुम तो मर्दों से भी ज्यादा दिलेर और हौसलामंद साबित हुई हो, मैंने अंगूरी की तरफ देखते हुए कहा। नजाकतें दिखाने का वक्त अब गुजर चुका है, अंगूरी ने जवाब दिया। गाजिब भेड़ियों ने वादी की मजलूम और बेगुनाह औरतों को हमेशा अपने लिए एक खिलौना समझा, इन्हें तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाया। मासूम औरतों की इज्तमाई आबरू रेजी रोज का मामूल बन चुका है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कश्मीर की औरत अपनी जान तो दे सकती है, लेकिन कोई हाथ अपने जिस्म तक पहुंचने नहीं देगी। वो हाथ तोड़ दिया जाएगा। चंद लम्हे को वो खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। अब औरत घर में बैठकर सिर्फ रोटियां नहीं पकाएगी। अब कश्मीर की हर बेटी के हाथों में राइफल नजर आएगी। कश्मीर की वादी अपने सुहाग, अपने भाइयों और अपने बेटों को मुहाज पर रुखसत करने का हौसला रखती है, तो उसमें मर्दों के पहलू ब पहलू लड़ने और दुश्मन से पंजा आजमाई करने का हौसला भी रखती है। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। वो जज्बाती हो रही थी। मैंने जानबूझकर बातों का रुख बदल दिया। हम तकरीबन 20 मिनट तक वहीं बैठे रहे और फिर अंगूरी अपनी सब मशीन गन संभालते हुए उठकर खड़ी हो गई। अब चलना चाहिए, वो इधर उधर देखते हुए बोली। उन पिटे हुए भारतीय सुरमाओं में इतना हौसला नहीं है कि इतनी दूर तक हमारा पीछा कर सके, लेकिन फौजी ट्रक इस शाहराह पर गश्त करते रहते हैं। अगर इन्हें कुमक मिल गई तो मुमकिन है वो ऊपर आने की कोशिश करें, इसलिए हमें अब यहाँ से चल देना चाहिए। मैं और हसन भी उठ गए। मैंने अपनी राइफल कंधे पर लटकाई। हम घने दरख्तों से निकलकर खुली जगह पर आ गए। जिस वक्त ये मार्का हुआ था उस वक्त रात का अंधेरा रुखसत होना शुरू हुआ था और दिन का बहुत हल्का सा उजाला फैलने लगा था और अब सूरज तुलू हो चुका था और दोपहर फैल रही थी। हम तेज तेज कदम उठाते हुए अब भी मुसलसल बुलंदी की तरफ सफर कर रहे थे। मैंने अंगूरी से ये नहीं पूछा था कि कहाँ जाना है, क्योंकि मैं नूरी से उसकी बात सुन चुका था। उसने नूरी से कहा था कि अब्दुल्ला के साथ चश्मे पर पहुंच जाए, जिसका मतलब था कि उनके पास कोई महफूज ठिकाना मौजूद था। नूरी और अब्दुल्ला दूसरी तरफ निकल गए थे। तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम फिरोजपुर में कमांडर मुहिबुल्लाह के साथ किसी गार में हो, इस तरफ कैसे आ गए? अंगूरी ने मेरे साथ चलते हुए पूछा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं कमांडर मुहिबुल्लाह के साथ था? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारे बारे में मालूमात करती रही थी, अंगूरी ने जवाब दिया। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। मेरे सीने में हलचल सी मच उठी। मैं सिर्फ चंद घंटे उनके घर पर रहा था। हमने नजर भर कर एक दूसरे को देखा भी नहीं था, एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। उनके घर से निकल जाने के बाद मैंने एक लम्हे को भी अंगूरी का ख्याल जहन से नहीं निकाला था और अब मेरे लिए ये इंकशाफ बड़ा ही सनसनीखेज साबित हुआ था कि अंगूरी भी मेरे तस्वुर को दिल में बसाए हुए थी। फौजी कैंप पर तुम लोगों की कार्रवाई बड़ी कामयाब रही, कोई भी नहीं बचा वहाँ। अंगूरी कह रही थी हमें मकबूल भाई की शहादत की तला भी मिल गई थी और
कमांडर मुहिबुल्लाह के जख्मी होने की भी। वो अब कैसे हैं? उनकी टांग में बम का टुकड़ा लगा था, अब पहले से बेहतर हैं, मैंने जवाब दिया। हम दोनों बेतकल्लुफी से बातें कर रहे थे और ये बेतकल्लुफी इस वाक़े का नतीजा भी थी जो इत्तफाकन पेश आ गया था। अगर भारतीय फौजियों के खिलाफ उस छापामार कार्रवाई में हम लोग ना मिलते तो शायद हमारे दरमियान तकल्लुफ का पर्दा अरसे तक हायल रहता और हम एक दूसरे से बात करते हुए हिचकिचाते। तुमने बताया नहीं यहाँ कैसे पहुँच गए? अंगूरी ने अपना सवाल दोहराया। कल सुबह मुझे इत्तला मिली कि भारतीय दरिंदों ने कैंप की तबाही का बदला लेने के लिए आसपास की बस्तियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा, विशालपुर में जो कुछ भी हुआ मुझे इसका अफसोस है। मासी आयशा की शहादत रायगा नहीं जाएगी। हम शोहदा के खून के एक एक कतरे का उन दरिंदों से हिसाब लेंगे। मैं चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मुझे ये खबर भी मिली थी कि वो भारतीय वहशी बस्ती की कुछ लड़कियों को उठा कर ले गए हैं और तुम लापता हो गई हो। मैंने कमांडर मुहिबुल्लाह से इजाजत ले ली और हसन के साथ कल रात विशालपुर पहुंच गया। वहां से पता चला कि तुम बस्ती से भाग गई थी और तुम्हें पतन की तरफ देखा गया था। हम रात ही को विशालपुर से रवाना हो गए और जब यहाँ पहुंचे तो इन दो फौजी ट्रकों को देखकर रुक गए कि वो गुजर जाएं तो हम सड़क पार करके दूसरी तरफ निकल जाएं। मगर इस वक्त तुम लोगों ने ट्रकों पर हमला कर दिया और दूसरी तरफ से हमने भी इस कार्रवाई में शिरकत कर ली। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैंने बात जारी रखी। मेरा ख्याल था कि मुजाहिदीन की कोई बड़ी पार्टी होगी जिसने फौजी ट्रकों पर हमला किया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस पार्टी में सिर्फ 3 अफराद होंगे, एक मर्द और 2 लड़कियाँ। और ये तो मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि इन लड़कियों में एक तुम होगी। औरत जब हथियार उठा लेती है तो ज्यादा खतरनाक हो जाती है, अंगूरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर उसके चेहरे पर संजीदगी आ गई। वो बात जारी रखते हुए कह रही थी कि गुलमर्ग वाले कैंप की तबाही के बाद भारतीय फौजी बुरी तरह झुंझुला गए हैं। उन्होंने बदला लेने के लिए करीब जवार की बस्तियों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उन्हें इन मुजाहिदीन की तलाश थी जिन्होंने कैंप की तबाही में हिस्सा लिया था, लेकिन वो भी जानते हैं कि मुजाहिदीन इनको बस्तियों में नहीं मिलेंगे। वो तो महज अपना गुस्सा और झुंझुलाहट उतार रहे थे। वे गुनाहों को बर्बरियत का निशाना बना रहे थे, उनके घरों को जला रहे हैं। एहतजाज करने वालों को संगीनों से छन्नी किया जा रहा है। जो भी एहतजाज करेगा उसका यही हशर होगा। और फिर उस रोज वो खामोश होकर इधर उधर देखने लगी, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, और फिर उस रोज शाम होने से जरा पहले 2 जीपों और 2 ट्रकों पर सवार तकरीबन 30-35 फौजी हमारी बस्ती में घुस आए। उन्होंने आते ही लूटमार शुरू कर दी। बूढ़े बच्चों और औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। इन्हें जाने कैसे पता चल गया था कि कैंप की तबाही से एक रोज पहले 2 मुजाहिदीन ने चंद घंटों के लिए इस बस्ती में कयाम किया था। और इन्हें ये भी पता चल गया था कि वो मुजाहिदीन आयशा के घर में रह रहे थे। 4 फौजी हमारे घर आ गए। अम्मा ने मुझे पिछले दरवाजे से निकाल दिया। मैं गली के सिरे पर चचा रशीदा के घर में छुप गई। कुछ देर बाद वो फौजी अम्मा को मारते पीटते और बालों से पकड़कर घसीटते हुए बस्ती के चौक पर ले गए। चची रशीदा के घर वालों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। अम्मा की चीखें मेरे कानों से टकराती रहीं। मैं बाहर निकलना चाहती थी, मगर चची रशीदा के घर वालों ने मुझे कमरे से नहीं निकलने दिया। बस्ती में शोर बढ़ता जा रहा था। भारतीय फौजियों ने हमारे घर को आग लगा दी। बस्ती के कुछ और घरों को भी जला दिया था। मैं जिस कमरे में बंद थी उसकी खिड़की से शोले और धुओं के बादल उठते हुए नजर आ रहे थे। शाम का अंधेरा फैल रहा था। फौजी अब घरों में घुसकर जवान लड़कियों को बाहर निकाल रहे थे। चची रशीदा का भाई मुझे और अपनी जवान बेटी ताहिरा को लेकर छुपता छुपाता बस्ती से निकल आया और कहा कि हम जंगल में जाकर छुप जाएंगे और जब ये भेड़िए वापस चले जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे। मैं और ताहिरा बस्ती से निकलकर गुलमर्ग की तरफ जाने वाले रास्ते के करीब ऊंची झाड़ियों में छुप गए। रास्ते के करीब छुपने का मकसद ये था कि हम इन फौजियों को वापस जाते हुए देख सकें और जब वो दूर चले जाए तो हम बस्ती में वापस आ जाए। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। बस्ती के कई मकानों में आग लगी हुई थी और फिर हमें 2 फौजी ट्रक आते हुए दिखाई दिए। मैं और ताहिरा झाड़ियों में छुपे इन्हें देख रहे थे। उस वक्त हम दोनों खौफ से थर थर कांप रहे थे। एक जीप और 2 ट्रक हमारे सामने से गुजर गए। आखिर में आने वाली जीप हमारे ऐन सामने सड़क पर रुक गई। मैं और ताहिरा खौफ के मारे एक दूसरे से लिपट गए। मेरा ख्याल था कि उन्होंने हमें देख लिया है, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। जीप खराब होकर रुकी थी। ड्राइवर बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। फिर नीचे उतरकर उसने इंजन का ढकना उठाया और खराबी तलाश करने लगा। जीप बगैर छत की थी। पिछले हिस्से में 2 फौजी बैठे हुए थे जिन्होंने एक लड़की को दबोच रखा था। उस लड़की के कराने की आवाजें हमारे कानों से टकरा रही थी। दूसरी जीप और ट्रक बहुत आगे निकल चुके थे। मैंने और ताहिरा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हम में न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि हमने एक निहायत खतरनाक फैसला कर लिया। हम दोनों बहुत मोहतात अंदाज में झाड़ियों से निकले और चीखते दहाड़ते हुए जीप पर हमला कर दिया। हमारी चीखों से जीप पर बैठे हुए फौजी बदहवास हो गए। हमने उनकी राइफलों पर कब्जा कर लिया। पहले लड़की को उनके शिकंजे से छुड़ाकर जीप से उतारा और फिर उन दोनों की जीप को गोलियों से भून दिया। ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन ताहिरा ने
उसे भी ढेर कर दिया। जिस लड़की को हमने फौजियों के कब्जे से छुड़ाया वो नूरी थी। हमने तीनों फौजियों की राइफलों पर कब्जा कर लिया और जीप में रखे हुए कई फालतू मैगजीन भी उठा लिए। इसी दौरान एक ट्रक वापस आता हुआ नजर आया। मैंने सोचा कि अगर हमने भागने की कोशिश की तो वो हमारा पीछा करके हमें गोलियों से छन्नी कर देगा। हम सड़क से जरा हटकर झाड़ियों और पत्थरों में छुप गए। अब हमारे दिलों से खौफ मिट चुका था, हौसले बढ़ गए थे। मुजाहिदीन हमारी बस्ती में आकर ठहरते रहते थे। मकबूल भाई तो अक्सर हमारे घर में ही ठहरते थे। मैंने मकबूल भाई से राइफल चलाना सीख ली थी। बस्ती की बहुत सी दूसरी लड़कियां भी बस्ती में आने वाले मुजाहिदीन से शौकिया तौर पर राइफल चलाना सीख चुकी थी, लेकिन उस रोज अमली तौर पर हमें राइफलें उठाने का मौका पहली बार मिला। वो एक बार फिर खामोश हो गई। मुसलसल बुलंदी पर चढ़ते रहने से हमारे सांस एक बार फिर फूलने लगे थे। अंगूरी बात जारी रखते हुए कह रही थी, ट्रक जीप से चंद गज के फासले पर रुक गया और तकरीबन निफ दर्जन फौजी ट्रक से उतरकर जीप की तरफ दौड़े। अपने साथियों की लाशें देखकर उनके चेहरों पर हवाइयां सी उड़ने लगी। वो ट्रक की हेडलैम्प्स की रोशनी में थे और मुकम्मल तौर पर हमारी इज्जत में थे। उन्होंने राइफलें संभाल ली, लेकिन इससे पहले कि वो सूरत हाल को पूरी तरह समझ पाते हमने फायर खोल दिया। 3 फौजी ढेर हो गए और बाकी ट्रक की तरफ दौड़े। वो लोग शायद ये समझ रहे थे कि मुजाहिदीन की कोई पार्टी यहाँ पहुँच गई है। ट्रक मुड़कर तेजी रफ्तारी से सड़क पर दौड़ने लगा। इस पर सवार फौजी अंधेरे में अंधाधुंध फायरिंग भी कर रहे थे। जीप पर वो फौजी नूरी को रास्ते भर नोचते आए थे। इसकी कमीज तार तार हो रही थी। हम लोग बस्ती में वापस आ गए। कई और घरों की तरह मेरा भी घर शोलों की लपेट में था। मेरी माँ की लाश चौक पर पड़ी थी। बस्ती के लोग खौफजदा थे। कुछ लोग मेरी माँ की लाश के करीब ही जमा थे। नूरी की माँ का तो अरसा पहले इंतकाल हो गया था। वो अपने बाप की इकलौती औलाद थी। वो जंगल काटने वाले ठेकेदार के यहाँ मजदूरी करता था, लेकिन आज वो भी इन दरिंदों की बर्बरियत का शिकार हो गया था। बस्ती में 3 और लाशें भी इधर उधर पड़ी हुई थी। उन तमाम लाशों को सुबह होने से पहले पहले दफना दिया गया। मैंने उनकी कब्रों पर खड़े होकर कसम खाई थी कि इनके खून के एक एक कतरे का बदला लूंगी। रात तो खैरियत से गुजर गई। ये भारतीय फौजी बड़े बुजदिल हैं। इन्हें अपनी जान का बड़ा खौफ रहता है। शाम का अंधेरा फैलने के बाद ये अपनी छावनियों या कैंपों से बाहर नहीं निकलते। रात को इन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। इनके 5 साथियों की लाशें रात भर बस्ती के बाहर सड़क पर पड़ी भेड़ियों की खुराक बनती रही। मुझे यकीन था कि सुबह होते ही फौजी भारी तादाद में एक बार फिर बस्ती पर हमला आवर होंगे, इसलिए मैंने दिन की रोशनी फैलने से पहले ही वहां से निकलने का फैसला कर लिया। ताहिरा को चच्ची रशीदा रात ही को चंद मील दूर एक बस्ती में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ले गई थी। नूरी मेरे साथ चलने को तैयार थी और फिर अब्दुल्ला भी हमारे साथ हो गया। ये दोनों एक दूसरे के मंगेतर हैं। हमने एक महफूज ठिकाना तलाश कर लिया है। मैं जानती हूँ कि दिन के वक्त फौजी गाड़ियाँ शाहराह पर गश्त करती रहती हैं। पहले रोज हमने एक अकेली जीप को निशाना बनाया। वो जीप पतन से बारामूला की तरफ जा रही थी। इसमें ड्राइवर समेत 4 फौजी थे। हम घात लगाए बैठे थे। वो चारों हमारे हाथों मारे गए। इस जीप से हमें बहुत सा एमुनेशन और कई दस्ती बम भी मिल गए। पिछले 3 रोज से हम इस शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर इसी किस्म की छापामार कार्रवाइयाँ करके भारतीय फौजियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज भी हम रात के आखिरी पहर 3 बजे इस जगह घात लगाकर बैठ गए थे और जैसे ही हमने ट्रकों पर हमला किया, दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाज सुनकर मैं समझ गई थी कि मुजाहिदीन की कोई बड़ी पार्टी इस तरफ आ निकली है। हमारे हौसले बढ़ गए थे, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैंने इसकी बात पूरी कर दी। अंगूरी ने हल्का सा कहका लगाया। फिजा में जैसे घंटियां सी बजने लगी। लेकिन तुम दो ने भी हमें बड़ा हौसला दिया था, अंगूरी ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। 2 तरफ से हमला हुआ तो भारतीय सुरमा यही समझे कि मुजाहिदीन की किसी बड़ी पार्टी ने हमला किया है और फिर अब्दुल्ला ने बरवक्त हैंड ग्रेनेड फेंक कर बड़ा काम दिखाया। मैं तुम लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ। मैंने चलते चलते अंगूरी का हाथ पकड़ लिया। उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा, लेकिन ना तो कोई एतराज किया और ना ही हाथ छुड़ाने की कोशिश की। क्या गोलियां चलाते और खून बहते देखकर तुम्हें खौफ नहीं आता? खौफ और डर ये चीजें अब मेरे लिए बेमायनी होकर रह गई हैं, उसने जवाब दिया। मेरा डर तो उस रोज दूर हो गया था जब मैंने और ताहिरा ने नूरी को फौजियों के शिकंजे में देखकर जीप पर हमला कर दिया था और फिर मैंने अपनों का खून बहते देखा है। उन भारतीय भेड़ियों का खून बहते देखकर मुझे खौफ क्यों महसूस होने लगा? बल्कि हकीकत तो ये है कि जब मैं किसी भारतीय फौजी को गोली खाकर गिरते और उसके जिस्म से खून का फवारा उबलते देखती हूँ तो मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। मैंने नूरी की तरफ देखा। इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर रहे थे। हम एक बार फिर रुक गए। हसन हमसे चंद गज पीछे चल रहा था। वो भी हमारे करीब आकर एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। हम पहाड़ी की चोटी पर थे। दूसरी तरफ नशेब में छोटी छोटी पहाड़ियों का सिलसिला था
जो दूर तक चला गया था। हम तकरीबन 1 घंटे तक बैठे रहे और फिर उठकर एक तंग से रास्ते में दाखिल हो गए। यहाँ हवा बहुत तेज थी जो हमें मुसलसल पीछे की तरफ धकेल रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद हम खुली जगह पर पहुंच गए। बड़ी हसीन जगह थी, दूर तक दरख्तों के झुंड फैले हुए थे। मखमली घास में मुस्कुराते हुए रंग बिरंगे जंगली फूल बहार दिखा रहे थे। हम एक बार फिर एक छोटी सी नदी पर रुक गए। शफाफ पानी उछलता और गुनगुनाता हुआ बह रहा था। मैंने जी भर कर ठंडा पानी पिया और मुंह पर छींटे मारने लगा। हम सिर्फ चंद मिनट वहाँ रुके और नदी के साथ साथ ऊपर की तरफ चलने लगे। इस मर्तबा हमें ज्यादा फासला तय करना नहीं पड़ा। करीबन 100 गज आगे एक सब्ज चट्टान के साथ घूमते ही हम रुक गए। दरख्तों के झुंड के नीचे एक बड़ा तालाब था। वो नदी ऐसी तालाब से निकलकर बह रही थी। यहाँ वो चश्मा था जिसका पानी तालाब की सूरत में जमा हो रहा था। इस तालाब की बाईं तरफ घास फूस का एक झोंपड़ा बना हुआ था और एक बूढ़ा आदमी झोंपड़े के सामने बिछी हुई चारपाई पर बैठा रस्सी बुन रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 60 के लगभग जरूर रही होगी। दाढ़ी और सर के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। हमें देखकर रस्सी वाली चरखी उसने नीचे रख दी और उठकर खड़ा हो गया। आ गई बेटी, वो अंगूरी की तरफ देखते हुए बोला। ये दोनों हैं तो अपने ही शेर, मगर इनके नाम बता दो बेटी ताकि इन्हें मुखातिब करने में आसानी रहे। उसने ये कहते हुए हमारी तरफ देखा। ये शिमरोज है और ये हसन। अंगूरी ने हमारा तारुफ करवाया। आज इत्तफाक से ये भी उसी शिकार पर झपटे थे जो हमारा निशाना था। फिर तो उस बदबख्त शिकार के चीथड़े उड़ गए होंगे। बूढ़ा मुस्कुरा दिया। हाँ बाबा, यही समझ लो, चीथड़े ही उड़ गए। उनके अंगूरी भी मुस्कुरा दी। नूरी और अब्दुल्ला तुम्हारे साथ नहीं है? बाबा ने कहा। वो बस आते ही होंगे, अंगूरी ने जवाब दिया। पर हमें तो भूख लग रही है बाबा, तुम बैठो, मैं अभी चावल उबाल लाता हूँ। वो सफेद रीछ बूढ़ा कहते हुए झोंपड़े के पीछे की तरफ चला गया।